Bismillahirrahmanirrahim. Now we have discussed valence bond theory in the previous class, and today too we have to discuss some of the other aspects of the valence bond theory. Like J. In today class, we will discuss about the structural aspects of six coordinated complex. स्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स में सिक्स कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए ये स्ट्रक्चर्स जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है और क्यों किस तरह इस बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड नाउ वी विल टेक अनदर स्ट्रक्चर दैट इज CuF6 -3. इसी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड दिस विल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. What's the difference between the two coordinated complexes? The one have NH3, which is a neutral ligand acting as a ligand, while in this F negative ion acting as a ligand. So in both the cases, we have cobalt as a central metal atom. So because of the presence of fluorine and NH3, this is the only difference between the two coordination complexes, and because of this difference, both the one show paramagnetic while the other show diamagnetic behavior, and similarly the one is inner orbital complex and the other one form outer orbital complex. This is why, this is because of coming fluorine or NH3 as a ligand. So this is to be explained how to explain the structure. So first of all, what we have to do, we have to draw the structure. We have to draw their इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में है जिस तरह के प्रीवियस क्लास में वी हैव कोबाल्ट एज अ सेंट्रल मेटल एटम. सो कोबाल्ट हैव एटॉमिक नंबर 27 and cobalt should have how many electrons? Cobalt have and the structure in the structures we can see here that cobalt का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, cobalt have atomic number 27 and it should have electronic configuration 1:2:2p6 up to 3d7 and 4:2. So there are 8 valence electron in the valence shell of cobalt, and as in this complex, the cobalt have oxidation number +3, while in this complex cobalt should have an oxidation number +6. क्यों? क्योंकि इसमें ये as a whole -3 को शो कर रहे हैं and here we have -6. तो in order to neutralize जी बिल्कुल +3. ओके. अब इसमें देखें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है
वो क्या है, दैट इज +3। क्यों? क्योंकि वी हैव 6 -6, तो प्लस अच्छा। Now let's, we don't know, let's suppose the cobalt have atomic number. अब cobalt have oxidation number x, and plus the oxidation number of iron, plus oxidation number of iron is -1, and we have 6 fluorine, so it should have an oxidation number -6. So as a whole the oxidation number is -3. So now look at this, x is equal to, x will become equal to what, -3, and plus this -6 on the other side of the equation will become +6. So on subtracting both from each other, we will get +3. So X is the oxidation number of cobalt. So oxidation number of cobalt is +3 in this complex. सो चूंकि इसी इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, एंड सो दैट्स व्हाई कोबाल्ट लॉस 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब कोबाल्ट चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, तो इसमें फिर हम देख सकते हैं जी जी। अब कोबाल्ट का जो है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन यहाँ से देखते हैं। सो दूसरे कॉम्प्लेक्स में भी कोबाल्ट का, यहाँ भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3, और जिस कॉम्प्लेक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वहाँ भी +3 है। तो एज अ होल कोबाल्ट विल लॉस इट्स 3 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्रॉम 4 is not, and 3 फ्रॉम दिस शेल 3d6। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन। सो कोबाल्ट का Cu+3 का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 3d6 4 is not बन जाएगा। सो इसी तरह से 3D में 6 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा। तो अब मेरे पास जो यहाँ स्ट्रक्चर ड्रा होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या सिचुएशन है, यहाँ पे मेरे पास जो है कोबाल्ट के जो 5 d ऑर्बिटल्स हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। कितने हुए, 6, 1 2 3 5, 1 2 3 4 and 5. 5 are D have 5 orbitals, and as a whole we have 6 electrons. So this have 1, and this have 1, and this have 1, and this will also have 1, and this have 1. So cobalt +3 have 6 electron in d orbital, so this will pair up. Now we have 6 electrons, and in 4 is not, we have no electrons. अब क्या होगा, as we know that fluorine is a strong ligand, तो because of the presence of strong ligands, that is fluorine, so electron pair up will occur, splitting of electrons will occurs and pair up taking place. So यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगी, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन will shift itself to this position, और इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब यहाँ पे सिचुएशन ये इस तरह होगा
कि यहाँ से इसमें जो इलेक्ट्रॉन हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए वो पेयर अप हुई स्ट्रांग लिगेंड की वजह से। सो डी ऑर्बिटल में पोजीशंस जो है वो पोजीशंस विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नो, अब चूंकि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होगा 1 2 3 4 और इस तरह 6। तो इसमें कुल कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, one electron is here and other one is here, and here we have no electrons. So sorry to say इसमें कोई पेयर अप नहीं होगी क्योंकि दिस में प्रोड्यूस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नॉट स्प्लिटिंग आकर, ये स्प्लिटिंग नहीं आकर करते हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे 4d ऑर्बिटल जो है that will take part in bond formation. Here we have what? We have 4d orbital. 1 2 3 4 and this is 5. मेरे पास ये this is 4d, ओके ये मेरे पास 4d है और ये 3d है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि 3d के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फील्ड है, पेयर अप नहीं होगा। सो मेरे पास जो फ्लोरीन के 6 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विल अरेंज इटसेल्फ इन दीज पोजीशंस। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे one pair of electrons from fluorine will accommodate itself at this position, और इसी तरह 4d से पहले 3p पहले फील्ड होगा और इसी तरह, और यहाँ पे दरमियान में 3p भी है, 3p1 और p2। तो एक फ्लोरीन इसकी तरफ आ जाएगा और 3 फ्लोरीन एटम्स जो हैं p में खुद को अकोमोडेट करते हैं बिकॉज दीज आर द वैकेंट ऑर्बिटल्स। और जैसा कि assumptions में हमने कहा था कि लिगेंड ऑर्बिटल विल अरेंज इटसेल्फ इन द वैकेंट ऑर्बिटल। और इसी तरह मेरे पास कितने फ्लोरीन रहते हैं 4, यहाँ 4 pairs of electrons of the fluorine will accommodate here at this position। एक पेयर यहाँ जाएगा फ्लोरीन का और एक पेयर यहाँ जाएगा। अब मेरे पास जो है इसमें कितने पेयर्स हुए, उसमें 6 फ्लोरीन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज वी हैव F6। सो F6, तो ये अब इसका यहाँ का जो वो है क्या कहते हैं मिक्सिंग अप ऑर्बिटल जो है, ठीक है, वो है sp3d2 sp3d2 ऑर्बिटल्स, एक s और 3p और 2d ऑर्बिटल जो है आपस में मिक्सअप होगी और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगी। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है that is sp3d2 hybridization or d2 sp3 hybridization। और जैसा कि हमने कहा था कि जहाँ पे d2 sp3 hybridization हो वहाँ पे octahedral स्ट्रक्चर होगी। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो octahedral कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्योंकि आपने देखा कि इसमें 4d ऑर्बिटल जो है that will occupied by the F इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि F इज अ वीक फील्ड लिगेंड, सो इसमें क्या है पेयर अप नहीं होगी और दीज विल बी सिंगली फिल्ड, ठीक है। तो ये मेरे पास इसी तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा।
अब दिस कॉम्प्लेक्स इज आल्सो शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि अगर डी ऑर्बिटल में मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल विल शो पैरामैग्नेटिज्म। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने देखा कि 3D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी है, सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स we have what we have we have this complex will show paramagnetic behavior. So about this complex, the complex will have a geometric octahedral geometry. octahedral geometry कौन बताता है? इसके D2sp3 hybridization से पता चलता है। और इसमें ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाए, क्योंकि आपने देखा कि इसमें 4D आउटर ऑर्बिटल जो है टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद द लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसलिए शो करते हैं कि इसमें जो डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो दैट इज अ सिंपल explanation about that how the will be the structural aspects of CuF6 minus 3. Now we will discuss about the अब इसको डिस्कस करते हैं, ये जो है स्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स ऑफ 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं। अब अगर हमारे पास 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स हो, 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस दो तरह के होते हैं, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी ये पोजेस कर सकते हैं। जैसा कि आप समझते हैं कि अगर आप लोगों के पास कौन सी वो हो हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपके पास जो है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो molecule will show square planar structures. अगर sp3 hybridization show, then molecule will show tetrahedral structures in case of 4 coordinated complexes. So अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास 4 coordinated complex like इसमें 2 examples दिए हुए NiCO whole 4 and NiCN whole 4 minus 2. So ये दो कॉम्प्लेक्सेस एक न्यूट्रल है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और इन कॉम्प्लेक्सेस को अब थोड़ा सा देखते हैं कि which one will show which kind of geometry or some other things. So the 4 coordinated complex है either formed by sp3 or dsp2 hybridizations. अगर sp3 hybridization को ये show कर रहा है, so sp3 hybridization इस बात की निशानी है कि that should have a geometry of tetrahedral geometry, and dsp2 will show a square planar geometry. So structures of NiCO whole 4 and structure of this. So ये मेरे पास न्यूट्रल लीगेंड है, ये न्यूट्रल लीगेंड जैसा कि हम समझते हैं will cause strong splitting, और जो है ये ये मेरे पास स्ट्रांग लीगेंड है और ये मेरे पास वीक लीगेंड है। स्ट्रांग लीगेंड जो है वो रिजल्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह पे लेके जाते हैं। सो इसमें भी इसको जब हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन का ये है कि आप सेंट्रल मेटल एटम जो कि निकल है, इसका दोनों में निकल एक्टिंग एज अ सेंट्रल मेटल एटम। आई डोंट नो व्हाट्स द atomic number of nickel. I think so that is 29. Okay, अब इसका अगर 29 इसका 27 है और इसका 29 है, तो यहाँ पे 3d9 इलेक्ट्रॉन्स होंगी, 3d9। सो निकल का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं, सो निकल में 3d9 निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखें, चूंकि निकल का जो एटॉमिक नंबर है निकल का दैट इज 29, क्या है 29। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं, सो इट शुड हैव अ 3d9, इसका क्या होगा 3d9 और 4 is 2, ठीक है।
तो 3d9 एंड 4:2। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम देखें, सो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल का जो एटॉमिक जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 0, क्योंकि Cu इज न्यूट्रल। सो एज अ होल यहाँ भी न्यूट्रल है। सो ये मेरे पास निकल है एटॉमिक ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सो यही जो है मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह जाएगी। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को जब मैं अरेंज करता हूँ इस कॉम्प्लेक्स के लिए, सो ये मेरे पास इसी तरह का सिचुएशन बन जाएगा। देखिए जी बिल्कुल 1 2 3 4 एंड 5। सो 3d9, सो दिस विल फिर अब फर्स्ट ये पहले जाएगा जी। Now pair up will start and we have 5 6 7, or now we have 8 and now we have 9. So this orbital will remain unpaired, and then we have what we have 2 electrons here. ठीक है। then we have 4p 4p6, लेकिन 4p not, here we have 4p, this is what 4p not। यहाँ पे मेरे पास this is 3d9, this is 4s2, and this is 4d not, because we haven't any electron in 4p orbitals। नाउ इसमें कोई ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी अगर है तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही क्या है इलेक्ट्रॉन है। ओके ओके जी। सो कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पे? क्या है यहाँ पे मेरे पास ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये क्या है 4d। सो ये मेरे पास कितने लिगेंड है? 4 लिगेंड है। तो यहाँ लिगेंड नहीं आ सकता, तो लिगेंड किधर जाएंगे? अच्छा अच्छा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके सॉरी there we don't have any electron here, this is 4 is not। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा? एक DsP2 ds, एक इधर, एक कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन्स, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोबाल्ट अरेंज इटसेल्फ हियर एट दिस, और एक पेयर खुद को यहाँ, two pairs and एक pair of electrons will arrange itself here at this position. So as a result we will get a geometry of dsp2, and this structure will show what kinds of geometry is octahedral geometry। लेकिन अगर structures को हम देखें तो structures में this as a whole the compound have a +2 charge। तो इसके लिए now we would like to calculate the let me calculate, let us calculate the geometry। okay, calculate its geometry। अब इसके लिए जब हम करते हैं कैलकुलेट करते हैं, सो nickel have a, let's suppose geometry x, and this have -1, so as a result we have a -4 इसकी, किस चीज की? ये this will be the oxidation state of CN4 की, and then as a whole we have oxidation state of +2, we have oxidation state of +2। ओके जी। देन अब होगा यूँ कि यहाँ से जी बिल्कुल हम इसको कर सकते हैं वेरी सिंपली, +2 और ये -4 +2 और +4 हो जाएगा, ठीक है। सो एज अ होल
क्या होगा, is equal to 6. So the oxidation state of nickel in this complex is plus 6. Okay. Now we have oxidation state of nickel in this complex, that is plus 6. अब प्लस 6 में क्या है, जैसा कि हम समझते हैं कि डी में क्या सिचुएशन है, डी में हम समझते हैं कि डी में जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निकल 29, सो निकल 29 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, अच्छा, सो डी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, यहाँ से कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लाइक 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन लॉस होगी, तो 2 यहाँ से लॉस होगी और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास कितने 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएंगे और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, किसके लिए, निकल प्लस 6 का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे 4p इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो 4p भी इलेक्ट्रॉन्स भी है, 4p में क्या होते हैं, 4p इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं इसमें जी। अब यहाँ पे मेरे पास जो है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगी, क्योंकि दिस इज अ वीकेंड लिगेंड, और वीकेंड लिगेंड जो है ये क्या करते हैं, पेयर अप नहीं करते, अनेबल टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल्स। तो क्या होगा, ds is 3s is vacant and 4p is vacant, so the 1cn pair will adjust itself here, और इसी तरह एक पेयर ऑफ cn will adjust here और एक पेयर यहाँ जाएगा, एंड cn इलेक्ट्रॉन का एक पेयर खुद को इस वैकेंट ऑर्बिटल में। तो नाउ वी विल हैव अ क्या कहते हैं, जो मिक्सिंग होगी ऑर्बिटल की, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें एक s और 3p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होगी। सो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है, दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस बात का सबूत है कि this will have a tetrahedral structures and this will have a square planar structure. Okay, right now चलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ complexes. The magnetic properties depend upon the number of unpaired electrons, जैसे कि हमने कहा था कि magnetic property depend upon। अच्छा, थोड़ा सा इस बारे में भी, निकल में भी हमने देखा कि we have unpaired electrons in the d orbital, so ये वाला जो tetrahedral geometry भी शो कर रहे हैं और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो कर रहा है। इसी तरह ये कहते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म कब शो होगा, if we have unpaired electron present in the d orbitals, then we should have a complex will show a paramagnetism, and the nature of the complex low spin or high spin complex। ये बिल्कुल जहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए कंडीशंस है कि डी ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड नेक्स्ट वन द कॉम्प्लेक्स शुड हैव लो स्पिन और शुड हैव हाई स्पिन। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कॉम्प्लेक्स लो स्पिन हो या हाई स्पिन हो, लेकिन डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने के लिए। Now this theory also have some drawbacks like the previous theories. So now I would like to discuss some of the drawbacks. The valence bond theory satisfactorily expand the geometry and magnetic properties of a large number of coordination compounds। जी बिल्कुल, in the previous theories we have discussed that
The previous theories doesn't explain the geometry and magnetic behaviors, but this theory explains the magnetic behavior and geometry for large number of molecules. Doesn't explain the color exhibited by the coordination compounds, but this theory fails to explain the colors of the coordination compounds. What's the reason behind the colors of the coordination compounds? The theory fails to explain this. And the third drawback is doesn't provide quantitative interpretation of this stability of the complexes. This theory fails to explain this. And similarly, देखें why a complex is stable and why another complex is unstable, the theories doesn't gives the answer. Similarly, doesn't explain the magnetic data for some of bilkul, is it can explain the magnetic behavior for some of the complex, for for a large number of complexes, but doesn't explain for some of the complexes. So this is also a ड्रॉबैक, क्योंकि ज़्यादातर के लिए तो कर सकता है मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, लेकिन कुछ फॉर सम ऑफ द complexes or coordination compounds, the theory fails to explain the magnetic behavior. Similarly, doesn't explain the involvement of third p orbitals in d sp2 hybridization, जो इसके square plane structures में हमारा जो है तीन p orbitals जो है वो involved होते थे hybridization में. Why these are orbitals are involved in hybridization, ये explain नहीं करता. इसी तरह this theory fails to predict the exact geometry of the complexes with the coordination number 4. जिन complexes की coordination number 4 होती थी, like NiCO whole 4 और NiCN whole 4, जो complexes इससे पहले यानी these two, this one and this complex. So for these two complexes, this theory fails to predict the exact geometry. And similarly, the relative stabilities of different complexes cannot be explained. This point I already discussed. This theory fails to explain why certain ligands form high spin complex while other form low spin complexes. This theory also fails to explain these terms. Okay, structures of COF6 minus 3. Okay, I already discussed these. बिल्कुल ये जो slides हैं इनको मैं पहले ही discuss कर चुका हूँ. Thank you so much, dear students. Now, if you peoples are available, so please let us know. Thanks. Thanks.